बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई होप से डूइंग ग्रेट। आज के इस लेक्चर में हम फ्रेजेस, क्लोजेस एंड सेंटेंसेस को समझने की कोशिश करेंगे। हम ये देखेंगे कि फ्रेजेस, क्लोजेस एंड सेंटेंसेस में क्या डिफरेंस है। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक। लेट्स स्टार्ट विथ फ्रेज। फ्रेज क्या होता है? व्हाट इज अ फ्रेज? A phrase is a group of words that does not contain a subject-verb combination. Phrase जो होता है वो एक words का group होता है जिसमें subject and verb combination नहीं होता. This is what you have to bear in your mind कि phrase में subject-verb combination नहीं होगा. Phrases जो हैं they act as a unit and can't stand alone as a complete sentence. जो phrases होते हैं वो units तो होते हैं but they can't stand alone to give you the complete thought. वो complete thought को express नहीं करते like sentences. Phrases can be of different types जैसे noun phrase, adjective phrase, verb phrase, adverb phrase and prepositional phrase. फॉर एग्जाम्पल नाउन फ्रेज का एग्जाम्पल कौन सा है? द बिग रेड कार इज द एग्जाम्पल ऑफ ए नाउन फ्रेज क्योंकि इसमें जो हेड वर्ड है दैट इज नाउन कार. Likewise, we have a verb phrase, for example, running quickly. Running quickly. In this phrase, we are talking about an action, and that is running. Now, let's have a look on adjective phrase. Very happy. Very happy is an adjective phrase because we are talking about a feeling. हम जो है इस phrase में feeling की बात कर रहे हैं, happiness की. Happy जो है that is the main word. जो main words होते हैं उसके basis पे क्या बनता है? Phrase बनता है. Now let's have a look on adverbial phrase. Yeah, simply you can call it an adverb phrase. For example, in the morning. In the morning. We are talking about time. And आपको पता है कि times क्या होते हैं? Time expressions, they are adverbs. And there can be prepositional phrases as well. For example, under the bridge. Under the bridge is a prepositional phrase. जो prepositional phrases होते हैं वो ज़्यादातर act करते हैं like adverbs, तो उनको हम adverbial phrase कहते हैं. I hope कि आपको phrase क्या होता है वो समझ आ गया होगा. मैं एक quick review करवाता हूँ. Phrase क्या होता है? It is a group of words that does not have a subject-verb combination and it can't stand alone like a sentence. It can be of different types: noun phrase, verb phrase, adjective phrase and adverb phrase. For example, the big car, running quickly, very happy and in the morning. These all are the example of phrases. Now let's try to understand कि clauses क्या होते हैं. जो clause होता है that is a group of words and it has a subject verb combination. Phrases में क्या था? Phrases भी group of words होते हैं but they don't have a subject verb combination, whereas जो clauses होते हैं they contain a subject verb combination. It means कि जो clauses होते हैं they have two parts, subject and predicate. Subject and predicate मिलके क्या बनाते हैं? Clauses बनाते हैं. Clauses can be independent and dependent. Clauses independent भी होते हैं and dependent भी होते हैं. जो independent clauses होते हैं they can stand alone and give you the complete meaning. Independent clauses alone they can stand and वो आपको complete meaning देते हैं. ऐसा subject and verb का combination जो आपको complete meaning दे उसको हम independent clause कहते हैं. For example, I went to the store. In this sentence, I is the subject, went to the store is the predicate. अब ये subject verb combination जो है it makes a complete clause and it gives you the complete meaning. ये आपको complete meaning दे रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे? Independent clause कहेंगे.
नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है। डिपेंडेंट, डिपेंड का मतलब किसी दूसरे पे डिपेंड करना। इट मीन्स जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है, इट कांट स्टैंड अलोन, दो के इट हैज अ सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन। इसमें सब्जेक्ट भी होता है एंड प्रेडिकेट भी होता है, बट इट कांट गिव यू द कंप्लीट मीनिंग। वो आपको कंप्लीट मीनिंग नहीं दे सकता, नहीं देता भी है। And it needs an independent clause to complete it. इसको जरूरत होती है किसी न किसी इंडिपेंडेंट क्लॉज की कि वो आए और इसको क्या करे, कंप्लीट करे। एंड जब इंडिपेंडेंट क्लॉज इसके साथ जुड़ जाएगा तो फिर ये कंप्लीट सेंटेंस बन जाता है। एंड ओनली देन इट स्टार्ट्स गिविंग यू द कंप्लीट मीनिंग। फॉर एग्जाम्पल, डिपेंडेंट क्लॉज का एग्जाम्पल कौन सा होगा? बिकॉज आई नीडेड मिल्क। Because I needed milk is a dependent clause because it does not give you the complete meaning. Now you see, because I needed milk, क्योंकि मुझे दूध की ज़रूरत थी, क्योंकि मुझे दूध की ज़रूरत थी। Now you see कि it is not a complete thought, ये complete thought नहीं है, and though कि it has a subject and predicate. I is the subject, needed milk is the predicate. Subject and predicate होने के बावजूद भी it is not giving you the complete meaning. एक दूसरा एग्जाम्पल डिपेंडेंट क्लॉज का, while I was shopping. while I was shopping, जब मैं शॉपिंग कर रहा था। अब जब मैं शॉपिंग कर रहा था तो क्या? नाउ यू सी अगेन इट इज नॉट गिविंग यू द कंप्लीट थॉट या कंप्लीट मीनिंग, तो ये भी हमारा क्या होगा? डिपेंडेंट क्लॉज होगा। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ डिपेंडेंट क्लॉज। एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज का मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि आई वेंट टू द स्टोर। आई वेंट टू द स्टोर इज एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि सेंटेंसेस क्या होते हैं। सेंटेंस जो है, that is a group of words that expresses a complete thought. सेंटेंस जो है, अगेन ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स एंड इट हैज अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। इसका सब्जेक्ट भी होता है एंड प्रेडिकेट भी होता है, एंड इट एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट। ये आपको कंप्लीट थॉट या कंप्लीट मीनिंग देता है। अब डिपेंडिंग अपॉन क्लॉजेस, सेंटेंसेस के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज, इट कैन फॉर्म अ कंप्लीट सेंटेंस। इंडिपेंडेंट क्लॉज कंप्लीट सेंटेंस भी बना सकता है। मैंने आपको पहले बताया कि जो क्लॉजेज होते हैं उसमें सब्जेक्ट भी होता है एंड प्रेडिकेट भी होता है, एंड क्लॉजेज इंडिपेंडेंट भी हो सकता है एंड डिपेंडेंट भी। जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है वो आपको कंप्लीट मीनिंग देता है, वेयर एज जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है वो आपको कंप्लीट मीनिंग नहीं देता। अब जो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होते हैं, दे कैन फॉर्म कंप्लीट सेंटेंसेस। फॉर एग्जांपल, I went to the store. I is the subject, went to the store is the predicate. Though it is an independent clause, but it has formed a complete sentence. तो इस टाइप ऑफ सेंटेंस को हम क्या कहेंगे? सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस जो होता है उसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, वन इंडिपेंडेंट क्लॉज। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कंपाउंड सेंटेंस क्या होगा। कंपाउंड का मतलब होता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू। अब कंपाउंड सेंटेंसेस में टू आर मोर देन टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं जो कि कनेक्टेड होते हैं विद कंजंक्शंस। कंपाउंड सेंटेंसेस में कंजंक्शंस जो यूज होते हैं, दे आर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। We use coordinating conjunctions to form a compound sentence. कंपाउंड सेंटेंस में दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होंगे, एंड उन इंडिपेंडेंट क्लॉजेज को हम कनेक्ट करते हैं विद कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। एक्रोनियम हम यूज करते हैं टू रिमेंबर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन से होते हैं? उनके लिए एक्रोनियम है फ्रेन बॉयज। एफ जो है, इट स्टैंड्स फॉर, A जो है that stands for ant,
N जो है दैट स्टैंड्स फॉर नॉट, B जो है दैट स्टैंड्स फॉर बट, O stands for or, Y stands for yet, and S stands for so. These are coordinating conjunctions जो कि हम यूज करते हैं to form compound sentences, या you can simply say कि हम ये यूज करते हैं to connect to independent clauses. For example, I went to the store and I bought milk. या सिंपली हम आई को रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि दोनों जो एक्शंस हैं दे आर रिलेटेड विथ वन सब्जेक्ट आई वेंट टू द स्टोर एंड बॉट मिल्क, आई वेंट टू द स्टोर एंड बॉट मिल्क, मैं स्टोर गया एंड मैंने दूध खरीदा. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ए कंपाउंड सेंटेंस. एंड द लास्ट वन इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लोज होता है एंड एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लोजेस होते हैं. अब वो जितने भी डिपेंडेंट क्लोजेस होंगे वो उस एक इंडिपेंडेंट क्लोज पे डिपेंड करेंगे फॉर द कंप्लीशन ऑफ देयर मीनिंग. फॉर एग्जांपल, आई वेंट टू द स्टोर बिकॉज आई नीडेड मिल्क. आई वेंट टू द स्टोर बिकॉज आई नीडेड मिल्क. In this sentence, I went to the store is an independent clause, whereas because I needed milk, this is an example of dependent clause. हम complex sentences में जो conjunctions use करते हैं उनको हम subordinating conjunctions कहते हैं. Subordinating conjunctions. And ये जो dependent clauses होते हैं they are known as subordinate clauses. इनको सबऑर्डिनेट क्लॉजेज भी कहा जाता है क्योंकि जो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होते हैं दे आर द मेन क्लॉजेज या प्राइमरी क्लॉजेज. फॉर एग्जांपल, एक दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का. पहले हम डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट जो है क्लॉजेज को देखेंगे सेपरेटली एंड देन हम उनको कंबाइन करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे. फॉर एग्जांपल, इफ यू वर्क हार्ड, इफ यू वर्क हार्ड is an example of a dependent clause. Now you see, if you work hard, you is the subject, work hard is the predicate. Though it has a subject verb combination, but it is not giving you the complete meaning. ये आपको complete meaning नहीं दे रहा. You will succeed, you will succeed is an example of independent clause. You जो है that is the subject, will succeed is the predicate. अब यू विल सक्सीड को अगर हम कनेक्ट करते हैं इफ यू वर्क हार्ड से तो आपका सेंटेंस बनेगा इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड. या आप इनको आगे पीछे भी रख सकते हैं. पहले आप इंडिपेंडेंट क्लॉज रखें एंड देन आप डिपेंडेंट क्लॉज. कैसे? यू विल सक्सीड इफ यू वर्क हार्ड. आप कामयाब होंगे अगर आप मेहनत करते हैं तो. इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन और कंफ्यूजन यू मे आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स. लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड kindly subscribe to my YouTube channel. Thank you so much. Allah Hafiz.